Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum salam. Welcome back to the Majlis Ansarullah Canada studios. We're live from the 38th National Ijtima of Majlis Ansarullah here from the Baitul Islam complex. We now have in our studio respected Dawood Ajmal Sahib, who is serving as Muawin Sadr in Majlis Ansarullah Canada, and he's currently serving as the Naib Nazmi Ala for Zafat for the Ijtima as well. Dawood Sahib, welcome to the studio. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi Walaikum salam warahmatullah. Please tell our viewers, first of all, what departments do you look after during the National Ijtima here? Assalamu alaikum. By the grace of Allah, this year Khaks are serving as Naib Nazmi Ala National Ijtima 2025, and in my we have 9 departments. Mehman Nawazi Baitul Ansar, store, Langar Khana, tea serving, then we have food serving in main marquee, food serving cleaning, and one other supply. And the supply as well. Yeah. Right. With respect to the langar, because it's a huge Absolutely, yes, department. There's yes. so much that goes on behind the scenes, whether Yeah. it's serving, whether it's cooking, whether it's cleaning, and making sure the food is exactly right, Yes. and the temperature is correct as well. Absolutely. The spices that go in each That's right, in each yes. pot are exactly right on as well. Can you tell us approximately how many pots have you cooked so far? So till today, like this lunchtime, we cooked already about 125 pots 125 altogether. pots. Yes, that including breakfast, lunch, and dinner. Right. And your team works around the clock? Absolutely, yeah. They start cooking for the breakfast around 4 a.m. Like this morning, they were we have a nihari in our menu, and we start cooking around 12. Around Midnight, 12 yeah, midnight, midnight, yes. To serve it this To morning serve at at 7 6. a.m. Yeah, that's Six, right, correct. right. Yes. Right. मैंने अभी अपनी हालत की बात की है तो मैं मेन्यू की बात करना चाहता हूँ। अंसारुल्लाह का माशाल्लाह फोकस काफ़ी है कि हमारा जो मयार है बहुत अच्छा है खाने का। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे जी। खास हदायत दी गई हैं। बस जो सदर साहब की हदायत के मुताबिक देखते हुए उसका माशाल्लाह मेन्यू काफ़ी अच्छा है अल्लाह के फजल के साथ। जी नहीं क्योंकि हमारे लोकल मजालस में भी बात होती है, हमने अंसारुल्लाह का इज्तिमा ज़रूर अटेंड करना है कि खाना एक खास हाईलाइट है जी इज्तिमा की। बिल्कुल। जैसे खाना पे आपको देखें आवाज़, वीडियो और खाना ये तीन ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं। जी इधर मेरे को खाना पहले You cannot compromise on these three. एब्सोल्युटली। सो जो लंगर खाने में जो दोस्त काम कर रहे हैं अभी इस टाइम पे भी वो देखे बड़े वो यानी कि पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट तकरीबन अब 30-40 वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने वो सुबह के टाइम शुरू करते हैं और रात को 8-9 बजे तक 10 बजे तक वो लगे रहते हैं, जिसमें उन्होंने कुकिंग करनी है, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लंगर खाने की सफाई वगैरह और उसके बाद फिर वो पार्ट्स वगैरह जो है उनको क्लीन करना। जी इसी तरह इस साल क्योंकि हमारा इज्तिमा सबसे आखिर पे हो रहा है और हमने वाइंड अप में भी लंगर खाने का सारा वाइंड अप करना, तकरीबन 125 के कुछ पार्ट्स हैं इनको हमने क्लीन करना है और उसके बाद हमने स्टैक करना है उनको सारा वापस पैकिंग वगैरह करके। जी तो भाई आपने मेहमान नवाजी की भी बात की है, अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन मेहमान नवाजी बैतुल अंसार ऑफिस जहाँ पे हम जो मेहमान आते हैं हमारे हम उनको वहाँ पे खाना सर्व करते हैं। अच्छा अकोमोडेशन अलग डिपार्टमेंट। अच्छा, लेकिन वैसे आपको उसका मालूमात है कि जितने मेहमान आते हैं वो क्या उनको जो पीछले में हमारे पास जमात के घर हैं या जो लोकल अंसार ऑफर करते होंगे उधर अकोमोडेट हो जाते हैं या बाज़ को हम होटल्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल के साथ सारे मेहमान जो हमारे गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं, उसके अलावा इस दफ़ा हमने वो ट्रेलर भी लिया था जिसमें हम रहायश 20 से 25 लोग हैं जिसमें वो रह रहे हैं उसमें लंगर खाने के लिए। नहीं वो रहायश के लिए। अच्छा I think this is the first time we experimented on this to have some sort of temporary accommodation similar to what we have right now. It's on a trailer. It's a very nice, clean trailer, and I think there are about 25 or 21 to 25 I believe. Yes, that's right. Yes, correct. And it's fully HVAC, so you have air conditioning, heating, and everything as well. And they're right in the middle of the Ijtima as well. Okay, so this is something new we tried this Absolutely, year. yeah. And the other thing is like, as I said, in my, we have a food serving as well, where we serve the food, lunch, we have breakfast, lunch, and dinner. And then we have about 125 volunteers working in that department. And
they work day and night as well. You know, I mean, it's a very challenging job. You know, I mean, to keep everybody happy, Right. to serve them. You know, I mean, and any ideas? या आपको अंदाज़ा है कि हर एक मील पे आप कितने ज़हन में होता है कितने लोग उसको खाना खा रहे हैं? almost हमारा I can give you an example like this time in lunch time we are serving about 2500 people. अच्छा माशाल्लाह. We have the food for 2500. I think I believe yeah about 2500 people are और इसमें आपको अंदाज़ा है कि जीटीए से बाहर कितने लोग आते हैं दूर से जैसे कैलगरी, वैंकूवर, ऑटवा, मॉन्ट्रियल इससे? I don't have the exact number. अच्छा. मुझे exact number तो नहीं पता लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन इस दफ़ा 200 के करीब हैं गेस्ट जो हमारे वेस्टर्न कनाडा से मैंने खुद महसूस किया है कि ऐसे लोग जो अमूमन पिछले 1-2 साल में खासकर मुझे नहीं नज़र आए. वैंकूवर की पूरी टीम आई हुई है, वॉलीबॉल क्रिकेट खेली है, कैलगरी की माशाल्लाह आए थे. सदर साहब की भी ये हिदायत थी कि जो माँ ज़रूर आए जी. उनकी आमला को कोशिश की आए, रीजनल आमला को इन्वाइट किया कि ज़रूर आए यहाँ पे. तो उस वजह से काफ़ी होता है कि एम्फोसिस के बाहर से ज़रूर आए. जी जी. अभी रिसेंटली मैं गया हूँ तो लॉर्ड मिनिस्टर भी गया हूँ तो वहाँ से भी बड़ी यानी कि कुछ लोग वहाँ से भी आए हैं, जोमा भी आए हैं. तो कई इंसान बड़ी अरसे से तैयारी करते हैं इज्तिमा पे आने के लिए. जी जी. और इस साल क्योंकि शूरा अब सेपरेट हो गई है तो उसका भी एक चैलेंज आ गया. नहीं तो हमारी शूरा भी साथ ही होती थी तो इस साल हमारी शूरा सेपरेट है तो उसकी वजह से कईयों को डबल ट्रिप करनी पड़ेगी. तो उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद काफ़ी जीटीए से बाहर से भी आए हुए हैं. और वो कल की जो जुमे पर हाजिर बहुत ज़बरदस्त थी कंसीडरिंग के वीकडे है और हमारा इफ्तिताह बड़ा चैलेंजिंग था जी. हाँ लोगों के लिए आना लेकिन बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह हो गया प्रोग्राम. ऑलमोस्ट 2000 के करीब. जी जी. 2200 के करीब थे लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह. हमेशा जैसे सलाना पे भी वो चल रहा होता है आलू गोश्त या दाल. तो आपके सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पकाते हैं? दाल पकती है, आलू गोश्त बनता है? हमारा जो मेन्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जी. जलसा सलाना से लेकर आलू गोश्त भी बनता है जो हमारा एक सिग्नेचर डिश है जी. और लंगर दाल भी. लेकिन हम अल्लाह ताला के फजल के साथ इस दफ़ा हमने पालक गोश्त भी सर्व किया इज्तिमा से एक दिन पहले. उसके अलावा इज्तिमा पे हमने निहारी सर्व की है. उसके अलावा दाल गोश्त है आज, फिर चिकन पुलाव, जर्दा वगैरह इस तरह की चीज़ें डिशेस, हलवा पूड़ी कल सुबह इंशाल्लाह नाश्ते में होगी. तो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हैं लेकिन जो सिग्नेचर हमारा आलू गोश्त और दाल है वो तो है. अब आप लिस्ट बताई जा रहे हैं और यहाँ पे खाना भी तक हमारे स्टूडियो में पहुँचा नहीं है, भूख लगने लगी है. जो घर में बैठे उनको ज़्यादा दिल कर रहा होगा कि अभी इधर पहुँचा. और भाई मैंने पूछना था कि जो वॉलंटियर्स हैं आपके मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन सारे अंसार ही होंगे और ये तकरीबन वही हैं जो ट्रेंड आपके क्योंकि आप जलसे में भी सिमिलर ड्यूटी करते हैं तकरीबन. तो ये वही तबका है या बिल्कुल मुख्तलिफ है? बल्कि अभी स्टूडियो में आपको सोहेब भाई की कॉल आ रही थी. सोहेब को मुझे पता है वो सेटअप में है तो ये इधर खाना सर्व कर रहे हैं. तो ये अंसार जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ वॉलंटियर्स हैं? सिमिलर 100% नहीं लेकिन बहुत मुख्तलिफ है. मोर देन 70% डिफरेंट है. यंग है. कोशिश ये है कि जो यंग इंसान है उनको ट्रेन किया जाए. ज़बरदस्त. जी जी. और इसी तरह हमारे पास इस दफ़ा सप्लाई में जो हम परचेजिंग करते हैं सारा सामान वगैरह उसमें हमारे पास एक मलक मुबशर साहब हैं जो मियाँ नईम साहब की टीम में है. वो नए दोस्त आए हैं, पहली दफ़ा उन्होंने काम किया. बड़ा अच्छा अल्लाह के साथ. जी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो. जी. अल्लाह ताला आप सब कुछ ज़्यादा माशाल्लाह बड़ी मेहनत से जैसे कहते हैं कि अराउंड द क्लॉक काम करना कोई आसान काम नहीं है. और बड़े एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी यहाँ पे पिछले हफ्ते से तो बारिश चलती रही थी. मौसम अच्छा था, प्लेजेंट था. लेकिन इस वीकेंड में दोबारा से गर्मी हो गई है. तो अभी 25 डिग्रीज अगर बाहर है तो लंगर खाना में तो 45 डिग्रीज हो जाता है. तो बड़ी मेहनत है. मेहनत भी है लेकिन खुदा ताला का फजल बल्कि दुआएं निकलती हैं क्योंकि ये वो वॉलंटियर्स हैं जो सामने नहीं आते, बैकग्राउंड में काम करते हैं. अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा जज़ा दे. अल्लाह ताला उनको जो इज्तिमा की बरकतें हैं उन तक भी पहुँचे. ख़ासतौर पर लंगर खाने वाले उनको तो सारा कुछ उधर ही होता है. वो तो एक डिश ख़त्म हो, एक मील ख़त्म होता है तो उसी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं. जज़ाकल्लाह. संजय आखिर में दरख्वास्त ये है कि सब वॉलंटियर को दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें. Thank you for joining us. Thank you for joining us here in the studio as well. We're going to take a short break and we'll be back with another respected member
just to give you a highlight of what goes on behind the scenes here at Jalsa Salana, what are some of the responsibilities? And we start at the Ijtima. Jalse ka abhi tak hum mode mein. Exactly. So we'll be back in a few minutes. कर मुबारक सुबहान